کہ باز محمد جیسے شہزادے یا یہ 57-58 وکلا جو شہید ہوئے، بشمول ان کے اور بھی کافی شہری شہید ہوئے، یہ کبھی ایسی ریاست میں پیدا نہ ہو جو ان کو بلا دیتا ہے۔ 8 اگست بلوچستان کی اس ماتمی دن کو یاد کرنے کے لیے حکومت نے کوئی سیاہ پرچم، کوئی سیاہ اشتہار، کوئی سیاہ بل بورڈ لگایا ہوگا۔ آج بھی جناح روڈ پر جائیں تو آپ کو سب سے بڑا بل بورڈ نظر آئے گا کہ 14 اگست کو لائیو شو ہے اور اس میں 8-10 خواتین کی تصویریں ہیں۔ لیکن ان کی تعلیم صرف جو ہے بندوق چلانے والی ہوتی ہے، قومیں چلانے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تربیت قومیں بنانے اور چلانے والی ہوتی تو ہم ان کی حکمرانی بھی کنٹرول کرتے، لیکن بندوق چلانے والا قوم نہیں چلا سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں بلوچستان کے 3 بڑے 4 بڑے عہدوں پر فائز سربراہوں کو کہ وہ بغیر بلٹ پروف گاڑی کے اور اپنے باڈی گارڈز کے سریاب کسٹم تک مجھے جا کر دکھائیں، پھر میں بتاؤں گا کہ بلوچستان گو گو ایریا ہے یا بلوچستان نو گو ایریا ہے۔ کہ بلوچستان اسمبلی پہ اتنا بڑا پریشر تھا، بیرونی پریشر، جس کو بیرونی پریشر تو آپ سمجھتے ہیں نا، معلوم اور نامعلوم پریشر۔ انقلاب اس لیے نہیں آئے گا کہ باز محمد کا غم صرف باز محمد کے گھر میں ہے۔ شہید باز محمد کی یاد میں سیمینار کرنے کا ٹیکہ صرف اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہے۔ مارنگ کے آنسو صرف بلوچوں کے ہیں۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کے آنسو اگر بینڈ بازوں میں چھپانا چاہتے ہیں تو یہ اور بھی ابھریں گے۔ جب بند ہوتا ہے تو پورا بلوچستان بند ہونا چاہیے، صرف بلوچ علاقے بند نہیں ہونے چاہیے۔ جب گیس نکلتی ہے تو پورے بلوچستان میں یکساں ملتا ہے سب کو۔ جب بلوچ کا خون گرتا ہے اس سے ملنے والے فوائد پورے بلوچستان میں سب کو یکساں ملتے ہیں، تو پھر پورے بلوچستان کو یکساں بلوچوں کے ساتھ ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچستان کا ہی پیسہ بلوچستان پہ خرچ کر کے ہر 14 اگست کو باہر سے بینڈ باجے والے بلائیں گے، لوگوں کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ بلوچستان میں سب کچھ درست ہے۔ میرے بھائی، ایوب اسٹیڈیم میں ناچ گانے سے، بینڈ بجانے سے نہیں۔ آپ نے بلوچستان کو کیا دیا، بلوچستان سے کیا لے گئے؟ آپ نے بلوچستان کو کتنا، بلوچستان میں خون بہایا اور اس کے بدلے میں بلوچستان سے کتنی گیس، کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنی دولت آپ لے گئے؟ تعزیتی ریفرنس، سیمینار یا ڈائیلاگ جو شہید باز محمد فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے محترم بھائی، ان کے بیٹے، ان کے دوست، ساتھی انہیں ہر سال مناتے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ شاید یہاں سیمینار ہوگا، ڈائیلاگ ہوگا، پرٹیکولرلی جو اس وقت منقسم بلوچستان ہے، جہاں ابھی بھی خون اور آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جہاں ابھی بھی لاٹھی اور گولی کی سرکار ہے، جہاں اب بھی بلوچستان کے تمام میدانوں سے، چاہے گوادر سے لے کر چمن تک، گھروں میں فاقہ کشی ہے، جہاں اب بھی وکلا احتجاج کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے شہید ہو جاتے ہیں، ایک ایسے بلوچستان میں ہم ان شہداء کی روح کے احساس ثواب کے لیے، اور پرٹیکولرلی یہ شہداء اس وقت شاید ان کے ارواح یہاں پر موجود ہوں گے، ایک ایسا ڈائیلاگ کریں گے کہ 2016 کے بعد، 8 اگست 2016 کے بعد ہم اسی طرح کے بلوچستان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہر سال ایک اس طرح کا تعزیتی ریفرنس منعقد کر کے، اور یہ بھی شکر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ باز محمد جیسے شہزادے یا یہ 57-58 وکلا جو شہید ہوئے، بشمول ان کے اور بھی کافی شہری شہید ہوئے، یہ کبھی ایسی ریاست میں پیدا نہ ہو جو ان کو بلا دیتا ہے۔ میں کبھی بھی دعا نہیں کروں گا کہ کوئی شخص ایک ایسی ریاست میں پرورش پائے جو اپنی زندگی کے 30-40 سال خوبصورت، یعنی ان وکلا میں سے جتنے بھی وکلا ہیں، ان کا ایوریج ایکسپیرینس ایکومولیٹ کریں، یکجا کریں، ان کی دانش، ان کی علم، ان کا فہم، ان کا تجربہ کتنا بنتا ہے؟ 57 وکلا کے 30 سال کے تجربے کو اگر آپ یکجا کریں تو بلوچستان کے 2000 سال بنتے ہیں۔ ضرب دیں، یہ جو فون آپ نے ہاتھ میں اٹھائے ہیں، 30 کو 57 پہ، 58 پہ، 60 پہ ضرب دیں، 2000 سال بلوچستان کے چھین لیے گئے۔ لیکن آج بھی ریاست میں جب میں جناح روڈ سے آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ شاید بلوچستان کے شہداء کے بہت بڑے بل بورڈ لگے ہوں گے۔ آج صبح کی جو ہے اخباروں میں، ٹی وی پہ، آج جو ہیں وہ شہداء 8 اگست بلوچستان کی اس ماتمی دن کو کم از کم خراج تحسین یا یاد کرنے کے لیے حکومت نے کوئی سیاہ پرچم، کوئی سیاہ اشتہار، کوئی سیاہ بل بورڈ لگایا ہوگا، لیکن
लेकिन आज भी जिना रोड पर जाएं तो आपको सबसे बड़ा बिलबोर्ड नजर आएगा कि 14 अगस्त को लाइव शो है और उसमें 8-10 खवातीन की तस्वीर है। मुझे लाइव शो से, खवातीन की तस्वीर से कोई एतराज नहीं। I'm a progressive person, but in a society, in a province, जहां पर आंसू, जहां पर हाएं, जहां पर सिसकियां, जहां पर माएं बहनें अभी भी ग्वादर में बैठी अपनी दुपट्टे ढूंढ रही हैं, अपने बच्चों के लिए दूध के लिए तरस रहे हैं, जहां पर नौजवानों को बोलने की इजाजत दी जा रही हो, जहां का वजीर आला उठ के कहता है आज भी, आज का अखबार देख लें, कहता है कि जी बलोचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं बलोचिस्तान के 4 बड़े ओहदों पर फाइज सरबराहों को कि वो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के और अपने बॉडीगार्ड्स के सरियाब कस्टम तक मुझे जाकर दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा कि बलोचिस्तान गो गो एरिया है या बलोचिस्तान नो गो एरिया है। बलोचिस्तान को आपने नो लिविंग एरिया बना दिया है। इंसान यहां पर अब जिंदा रह नहीं सकते। इंसान यहां पर जिस किस्म के गुथन माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, जलसे नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, तहरीर नहीं लिख सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट नहीं दे सकते, अपनी और मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने मुंतखब नुमाइंदे भेज नहीं सकते, अपनी और मर्जी और मंशा के मुताबिक इन अदालतों में, ऐवानों में जो है काबिल एहतराम नेकनाम जजेस नहीं बिठा सकते। ये कोई मुल्क है? ये रियासत इस तरह होती है? ऐसे रियासतों में पता नहीं, शायद ये कोई सानिया नहीं था, ये सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट है। इसको कहते हैं दानिस्ता तौर पर किसी समाज से उसकी खमीर को निकालना, उसके ज़मीर को निकालना, उसके इल्म को निकालना। ये 60 बंदे, मैं तकरीबन 15-20 साल से पूरे बलोचिस्तान में ये खून का खेल जारी है। इतने चेक पोस्ट बलोचिस्तान में मैंने एक दफा नहीं 10 दफा इस पे बोला और लिखा भी है। अभी भी फलस्तीन और इजराइल के दरमियान सबसे बड़ा झगड़ा है, नहीं है। आप खुद उठा के सर्च करें। यह कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई आपको एग्जैजरेटेड कोई बात करता हूं। क्या कश्मीर में झगड़ा नहीं है? कल यहां पर चौक पे 200-200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे के लोगों को झंडे हाथ में पकड़वा के यौम इस्तेसाल बनवाया जा रहा था। क्या आज हुकूमत को शर्म नहीं आई कि कोई इसी तरह के 1000 रुपए वाले बंदे ही ले आता, यहां पर यौम 8 अगस्त शोदाए वकला बना लेता? बलोचिस्तान का गम, बलोचिस्तान के दुख, बलोचिस्तान की तकलीफ, बलोचिस्तान की आए, बलोचिस्तान के लोगों की आओ फगा आपको नजर नहीं आती? चिट्ठी दे रहे हैं या पानी हो गया? तो कहने का मकसद यह है कि ऐसे बलोचिस्तान में, हां, ये डायलॉग आज अगर शहीद बाज़ मोहम्मद के ये बाजू और इसके फर्जिंद और इसके बाई ना होते, मैं अल्फिया कहता हूं, शायद आज के ये डायलॉग भी नहीं होता। हम सारी, मैं ये बात मैंने 2021 में भी की थी। 2016 में ये शहादत का वाकया हुआ, साना मरूनमा हुआ। 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत हुई। अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, आप तो खैर 12 महीनों में से किसी भी महीने को ले लें, जो लोग बलोचिस्तान की सियासत पे, बलोचिस्तान की समाज पे, बलोचिस्तान के लोगों के दुख दर्द पर उनका हाथ है नब्ज पर, वो जानते हैं कि कोई भी ऐसा महीना नहीं है जो दुखों से, आओं से और खून खराबे से, शब खून से भरा ना हो। लेकिन 2016 में होने वाले साने पर एक कमीशन बनी। एक कमीशन ने कुछ 6-7 सिफारिशात की, मैं तफसीली रिपोर्ट में नहीं जाना चाहता, कोई 58-57 सफ़े पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है। और 2016 के बाद बलोचिस्तान असम्बली में कोई एक शख्स भी उसको नहीं लाया था। जिस दिन मैंने 11 या मुझे याद है 9 या 10 अगस्त को, जिस दिन 8 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम था, मैंने ये कमिटमेंट भी की कि मैं इसको लाऊंगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि बलोचिस्तान असम्बली पे इतना बड़ा प्रेशर था, बैरूनी प्रेशर, जिसको बैरूनी प्रेशर तो आप समझते हैं ना, मालूम और नामालूम प्रेशर, कि जी आप इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में करारदाद को पेश होने नहीं देना है। 2016 में हमारे ईरे जवाहरात, हमारे माशरे का खमीर, हमारे माशरे का ज़बीर, हमारे माशरे की तालीम, तरबियत, 2000 साल का तजर्बा जो है वो एक लम्हे में, 15 सेकंड में जो हमसे ले जाया गया। और फिर उसके बाद उस कमीशन की रिपोर्ट पे बात करने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए कोई नहीं ला सका। मैंने कहा मेरी मेंबरशिप चली जाती है, चली जाए, मैंने ये करारदाद पेश करना है, उस पर बहस करना है।
करारदाद तो हमने मंजूर करवा ली, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब बंद होता है तो पूरा बलोचिस्तान बंद होना चाहिए, सिर्फ बलोच इलाके बंद नहीं होने चाहिए। जब गैस निकलती है तो पूरे बलोचिस्तान में यकसा मिलता है सबको। जब बलोच का खून गिरता है उससे मिलने वाले फवाइद पूरे बलोचिस्तान में सबको यकसा मिलते हैं, तो फिर पूरे बलोचिस्तान को यकसा बलोचों के साथ उनके गम और खुशी में शरीक होना चाहिए। और इस हुकूमत पे साबित कर देना चाहिए कि तुम कहते हो नो गो एरिया है बलोचिस्तान, हुक्मरानों के लिए नो गो एरिया है, गरीबों के लिए पास है ही क्या कि वो इसमें जाए, क्या करें? ज्यादा ज्यादा उनकी जान है वो तो अब सरकार खुद ले लेती है, अपने बम धमाकों से, अपनी साजिशों से, अपने बंदूकों से, अपने जाली इलेक्शन से, अपने डेथ स्क्वाड से। और इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में मैं चाह रहा था कि बात हो वक्त की कमी है, उस रिपोर्ट में 6 बड़े अहम सिफारिशात हैं कि हुकूमत कब डेथ स्क्वाड्स को और इंतहा पसंद ग्रुपों की सरपरस्ती करना छोड़ेगा। यह उस रिपोर्ट के अहम सिफारिशात में से एक था। क्या 2016 के साने के बाद, काजी फाइज ईसा की उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद, उनके सिफारिशात के बाद आप हाथ उठा के बताएं, ईमान के साथ बताएं, क्या जत्थे, इंतहा पसंद तंजीमें, डेथ स्क्वाड्स, माफियाज और अगवा बराए तावान के ग्रुपों से रियासत ने अपना हाथ उठा लिया है? अभी तक रियासत उनको सपोर्ट करता है, नहीं करता। जब ऐसे जगह पे फिर जनाबे वाला ऐसे मुल्क में उनकी कोशिश होगी। वक्त की कमी है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, अपनी गुफ्तगू करेंगे। इस मुल्क में इदारों ने दुरुस्त नहीं होना। मल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्टीमेटली सिंस लास्ट 30 to 40 ईयर्स जो एक सोशल पॉलिटिकल, जिसको हम कहते हैं समाजी सियासी फैब्रिक जाल, हमारे आबा अजदाद ने कोई 1000-2000 साल में उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्जों में कहा, उन्होंने कहा कबाइलिज्म, ये कबाइलिज्म नहीं है, ये हमारा एक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल फैब्रिक था, जिसमें अगर कुचलाक में भी चोरी होती तो तुर्बत में भी अगर वो बंदा चला जाता तो वो पकड़ा जाता। लेकिन क्वेटा में 80 अफराद को शहीद करने के बाद 8 अगस्त 2016 को आज तक हमें क्लू तक नहीं मिलता कि वो करने वाला बंदा कौन था। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक है, हमारा कल्चरल फैब्रिक है, हमारा ट्राइबल फैब्रिक है, हमारा जो जियोग्राफिकल फैब्रिक है, फैब्रिक को अंग्रेजी में फैब्रिक कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में क्या उसको जो ये जाल बुनते हैं खूबसूरत सा तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने, तो वो जो फैब्रिक है उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। यहाँ बैठे हुए लोगों ने हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद पोस्टिंग होती है, नया आदमी नए मिजाज के साथ आता है। कोई मैं इनको कम तालीम याफ्ता नहीं बोलता, लेकिन इनकी तालीम सिर्फ जो है बंदूक चलाने वाली होती है, कौमें चलाने वाली नहीं होती है। अगर उनकी तरबियत कौमें बनाने और चलाने वाली होती तो हम इनकी हुक्मरानी भी कंट्रोल करते, लेकिन बंदूक चलाने वाला कौम नहीं चला सकता, टैंके चलाने वाला कौम नहीं चला सकता, और इसी तरह एयरफोर्स के जहाज चलाने वाला इस मुल्क की मईशत को नहीं उड़ा सकता।